Hi everyone and welcome to this, the Hindu article 1, which I had shared in our group. If you are looking at this article from outside the group or from outside my batch, you can still have a look at how I break or analogize the parts that are used by the author in terms of the paragraph. So अब देखना है paragraphs के तरीके से किस तरीके से जो है author ने इसको structure किया है. So we would use the structure, right? We would use the structure, okay, the analogy, and breaking of the sentence according to the part that we have done in the class. Okay, so these are the three tools that we would be using. Now, the exercise intends to break the heavy sentences and paragraphs for you while giving you the tools to understand. So tools to understand, we have already discussed them, right? If you are looking at this exercise from uh, if you are a non-batch member, right, then you can look at these tools individually through a grammar book or something else and replicate other such passages, replicate in other such passages. Sorry for the mistake here. So let us move to the passage now. Okay, now. Okay, so the first part that I have carved out of the um, of the article, right? From here till here, it is easy to understand, right? Let us have a look. Even as the global economy is set to slow down or even enter a recession in 2023, as financial market, right, face heightened uncertainty. So they are facing uncertainty, right? Okay. Now, Indian economy is gathering momentum in the same time. Okay. So who wrote this? Michael D. Patra wrote this. Who is the Michael D. Patra? Deputy Governor of RBI. So this is the claim of Michael D. Patra. Now, India has emerged from the pandemic years stronger than initially thought, they asserted. So they asserted, the RBI asserted, right? Unlike the global economy, India would not slow down, again saying the same thing. It would maintain the pace of expansion. Okay. So they are saying that India has emerged and is 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 going to expand in the future also when the global economy is set to slow down, right? Okay, now, so he had said that in the first one also no new information has been gathered till here, right? Okay, the RBI remains optimistic about India whatever the odds. This is a statement of extreme confidence, right? What they are saying. Now, if if the officials observed that the National Statistical Office says NSO and February data release indicated that the Indian economy was intrinsically better positioned than many. Now, intrinsically has been used here. Remember this, what are we seeing here? This is a adverb, right? Intrinsically better positioned than many parts of the world to head into the challenging year ahead. Okay. So what is the claim here? All the parts are same, but here the intrinsic part is the different one. Right. Now I can assume that they would be talking about this intrinsically better positioned part than many parts of the world to head into challenging year ahead. So mainly because of its demonstrated resilience and its resilience on domestic drivers. Reliance on domestic drivers. So domestic drivers, what are these domestic drivers? The domestic consumption and domestic market, right? Which drive the GDP, right? And resilience, that it means that it can have strong growth numbers instead of these recession
global recession, right? Global economic recession. Fine. Now let us move to the, now I have written the whole point here, right? This is the gist of all these parts. Indian economy is set to grow because of its demonstrated resilience and its reliance on domestic drivers, even as the world economy is set to slow down. So this is how I got to the final part. Now let us move to the next part, right? Okay. Okay. So I have kept it here, right? Like this. Fine. Now they are coming on the supply side. So on the supply side, if the author says on the supply side, they would have, okay, the earlier part was of the demand side. Remember that. Okay, we can infer that the earlier part was of the demand side. तो demand side का part जो है वो पहले बता चुके हैं. अभी देखो यहाँ पे supply side का आएगा. ठीक है. Agriculture was into a seasonal uptick. Agriculture जो है वो seasonal uptick में जाने लगा है. They wrote, who wrote? The RBI wrote. With industry also emerging out of a contraction, industry भी contraction से बाहर आने लगी, right? They might be on a steady path or they might be growing. Now, एंड सर्विसेज की भी बात आने लगी है. इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर, तीन चीजों की हैविंग मेंटेन मोमेंटम. तो सर्विसेज क्या है, पहले से भी ग्रो हो रही थी और अभी भी ग्रो हो रही है. हाउएवर को याद रखना, दे डिड फ्लैग प्राइस स्टेबिलिटी एज अ कंसर्न. दे, द आरबीआई, इंक्लूडिंग द परसिस्टेंट स्टिकीनेस इन कोर इन्फ्लेशन. सो परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अगर स्टिकीनेस का मतलब नहीं समझ में आया तो परसिस्टेंट देख लो, राइट? परसिस्टेंट स्टिकीनेस, राइट? परसिस्टेंट यानी जारी रहेगा, स्टिकीनेस इन कोर इन्फ्लेशन. सो कोर इन्फ्लेशन क्या जारी रहेगा, राइट? आई डू नॉट नीड स्टिकीनेस हियर. नाउ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रिमेन्स हाई, कोर इन्फ्लेशन continues to defy the distinct softening of input costs. Okay, so क्या हुआ यहाँ, softening of input costs हुआ है, right? मुझे पता नहीं किस चीज का input cost है, but I am seeing this, right? I would retain this for answering the questions if any questions arise from here. Consumer price inflation remains high and core inflation, ठीक है? Consumer price inflation, दो टाइप के inflation की बात हुई है. Core inflation continues to defy the distinct softening. इसका मतलब ये है कि distinct softening की वजह से इसको स्लो डाउन हो जाना चाहिए था, बट इट हैज नॉट डन दैट टिल नाउ, राइट? ओके, नाउ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रिमेन्स हाई, राइट? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी एक टाइप की इन्फ्लेशन है. वी डोंट नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इट इज, बट ये भी हाई है. अब ये मुझे कैसे पता चला, राइट? ओके, द फर्स्ट इज अ क्लॉज, राइट, एंड द सेकेंड इज अनदर क्लॉज. सो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही थी. आई रिमेन द स्ट्रक्चर, I retained the subject, right? And then saw that it remains high. Okay. Core inflation, again, it remains high, continues to defy the distinct softening of input costs. So there are two subjects that we are talking about. We can keep them in mind. Now, the next paragraph, noting that the bank collapses in US in the first half of March were rippling through the global financial market. Okay, rippling. What is the ripple? Ripple तुमने देखा होगा कि पानी में when you throw a stone, there are ripples like this, right? So उसका rippling effect हो रहा है. ये बहुत यूज होता है फाइनेंशियल मार्केट में. rippling through the global financial market with the likely direct impact on the meltdown on economic activity appearing to be limited at present, right? So ये क्या होगा, meltdown होगा on economic activity. What is a meltdown? meltdown means that economic activity जो है, ग्लोबल मेल्टडाउन का मतलब ये होता है कि स्लो डाउन आ गया, राइट? ओके, दैट मींस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी एट प्रेजेंट, वो क्या होगी, डायरेक्ट इंपैक्ट उसके मेल्टडाउन पे हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी. जो पैसा डाल रहे थे बिजनेस में वो कम डालेंगे. दे सेड मार्केट्स वर हाउएवर ब्रेसिंग फॉर टाइटल फाइनेंशियल कंडीशंस. बट क्या है, हाउएवर से इन्होंने क्या कर दिया, दे सेड मार्केट्स वर ब्रेसिंग फॉर टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस व्हिच कुड प्रेजेंट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी concerns and the conduct of disinflationary monetary policy, right? So this could present a trade off between what, financial stability concerns, right? Okay,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स ये वाले थे जो पहले हम दे रहे थे, उसका कंटेक्स्ट लेके करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बैंक्स कोलैप्स हो गए, ठीक है। तो फाइनेंशियल एबिलिटी कंसर्न्स उससे जागेंगे। एंड ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, इनके बीच में हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एंड द कंडक्ट ऑफ डिसइंफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज दिस? डिसइंफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डिसइंफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। वी डू नॉट नो हाउ दे आर प्लेइंग, बट हाँ हमको इतना सा पता चल गया है कि विच कुड प्रेजेंट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स एंड डिसइंफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। फिर से एक बारी देख लेते हैं इसको, टोटली इसको कर लेते हैं एक बारी, राइट। नाउ क्या चीज है? रिपलिंग इफेक्ट है कोलैप्स ऑफ बैंक्स की वजह से इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो वो लोग क्या करेंगे? पैसा कम खर्च करेंगे, राइट। बट हाउ एवर वी आर ब्रेसिंग फॉर टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस, okay, which could present a trade-off between financial stability concerns, okay, and the conduct of disinflationary monetary policy. फाइन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न, अब इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझा सकता हूं, बट यू नीड टू रीड इट लाइक यू हैव बीन रीडिंग इन द एग्जाम। द कंडक्ट ऑफ, दो चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स एंड कंडक्ट ऑफ डिसइंफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। ट्रेड ऑफ है तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों की बात यहां पे की गई है। फियर इज क्रीपिंग बैक आफ्टर रिमेनिंग टेपेड मंथ्स फॉर मंथ्स, ओके। फियर इज क्रीपिंग बैक, ओके। वॉल स्ट्रीट फियर गॉज गेज, सॉरी, गेज का मतलब क्या होता है? जो नापता है फियर, राइट। द VIX, ये कोई कंपनी हो सकती है, सर्ज्ड बाय 17.7%, ओके। ये कोई इंडेक्स हो सकता है क्योंकि ये सर्ज हुआ है, राइट। ये ऊपर बढ़ा है 17.7% से ऑन बाय मार्च 17 ओवर इट्स लेवल एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 के ऊपर इसकी इंक्रीज जो है 17.7%। यील्ड कर्व्स आर इन डीप इन्वर्जन एंड फ्यूचर लुक्स डार्कर देन इट डिड जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो इन अर्ली February। सो इसकी वजह से क्या हुआ है? ये बैंक कोलैप्स की वजह से ही फियर इज क्रिपिंग बैक इन ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, तो वी हैव सीन अ पैटर्न कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है? ग्लोबल मार्केट में हो रहा है कि वहां पे फियर है, बट इंडिया लुक्स ऑप्टिमिस्टिक, right? Okay, now let us see what all we have enumerated in this global in this points, right? All the sectors are going, we read it in the first paragraph. Inflation is a problem, inflation problem है, ठीक है। Concern global financial market bracing for tighter financial conditions which could present a trade-off between financial stability concerns and the conduct of disinflationary monetary policies। अब ये जो है यहाँ पे नेगेटिव में चला गया है, बट दिस वाज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। तो यहां से यहां तक जो है नेगेटिव में चला जा रहा है अभी तक, ठीक है। बैंक कोलेप्सिस के बारे में मैंने नहीं लिया। तो प्राइस स्टेबिलिटी टू रिमेन अ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। चलो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए था, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू रिमेन अ प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। तो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। फियर आ गया है नाउ। Now, stating that, now we see that this is a modifier, stating that the currently available forecasts of India's real GDP growth for 2023-24. Okay, available forecast of India, including those of the RBI, right? RBI का include करके settled between, अब वो state करके, right? This is a modifier from here to here, right? From here to here. This is a modifier. This is an apposition. सो ये स्टेट करके कि हाँ सारी जो इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड की और इंडिया की, उन्होंने 6.0 से 6.5% तक हमारा ग्रोथ नंबर्स रखा है जीडीपी का। दे स्टेटेड, हु स्टेटेड? RBI stated, but as we wrote in the last month edition of State of the Economy, okay, what if at least, now they are talking about two assumptions, first assumption and the second assumption, right? What if denotes an assumption, ठीक है, इसको याद रखना, इट डिनोट्स एन assumption. नाउ व्हाट इफ एटलीस्ट 50% ऑफ द 35%, 35,000 करोड़, नाउ ये बजट पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा
राइट 35,000 ऑफ टैक्स रिलीफ प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट। अब ये टैक्स रिलीफ दिए गए हैं जनता को, इज यूज्ड बाय टैक्स पेयर्स फॉर कंजम्पशन एंड एड टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ अगर 50% भी जो टैक्स रिलीफ दिया गया है जनता को, तो वो लोग क्या करेंगे, टैक्स बचता है तो क्या करते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, राइट, वी कंज्यूम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ खा सकते हैं, राइट, वी कैन मूव टू द वी कैन मूव टू द रेस्टोरेंट्स फॉर ईटिंग, राइट, वीकली। नाउ अब आगे जाते हैं, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है, दिस इज पॉसिबल प्लॉजिबल। अब ये बता रहे हैं कि ये प्लॉजिबल है बिकॉज, अब तुमको प्लॉजिबल का मतलब ना भी पता हो तो यू नो द मीनिंग ऑफ बिकॉज। सो बिकॉज इज अ रीजन, या दिस इज प्लॉजिबल बिकॉज, दिस की बात क्या हो रही है, दिस की बात हो रही है, राइट, दिस इज प्लॉजिबल बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ एन एडिशनल रुपी ऑफ इनकम दैट इज स्पेंट, प्रपोर्शन याद रखना, ठीक है, प्रपोर्शन इज द परसेंटेज, राइट, और रेशियो। सो रेशियो ऑफ एन एडिशनल रुपी ऑफ इनकम, तो एडिशनल रुपी ऑफ इनकम का प्रपोर्शन, राइट, ऑफ एन एडिशनल रुपी ऑफ इनकम, यानी 1 रुपया जो एडिशनल हमारे जेब में आ रहा है ड्यू टू दिस टैक्स कट, ठीक है, टैक्स रिलीफ जो कि हमको दिया गया है, हम लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, एस्टिमेटेड 0.54%, ये आरबीआई का एस्टिमेट है, ठीक है, 0.54 1 रुपए में से खर्चा कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा परसेंटेज, अराउंड 90-80% हम लोग खर्चा कर रहे हैं। एंड व्हाट इफ, ये एडिशनल इनकम पे, याद रखना एडिशनल रुपी ऑफ इनकम पे है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की गई है, यहाँ पे ये लोग खेल सकते हैं इन द ऑप्शंस। एंड व्हाट इफ इवन अ थर्ड ऑफ एडिशनल एलोकेशन ऑफ, अब यहाँ पे एंड आ गया है, तो रिमेंबर दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, द सेकंड assumption बी इज बीइंग टेकन प्लेस, इज बीइंग टेकिंग प्लेस। व्हाट इफ, यहाँ पे देखो पैरेललिज्म आ गया है या एनालॉजी आ गया है, व्हाट इफ इवन अ थर्ड ऑफ एडिशनल एलोकेशन ऑफ रुपीज 3.2 लाख करोड़ बजटेड फॉर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि हमारा जो है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है, राइट, जो गवर्नमेंट्स रोड बना रही है, तो उससे भी जो है क्या होता है, फायदा होता है जीडीपी को। एंड वो क्या करेगा, एड्स टू द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, यही रोड्स वगैरह, एसेट्स वगैरह, मशीन्स वगैरह आएंगी, ये क्या है, जीडीपी की एक और कंपोनेंट है। यानी अगर ये बढ़ेगा, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट बढ़ेंगे, आउट ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यहाँ मैं ऑल द कंपोनेंट्स दे रहा हूँ जीडीपी के, तो क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी, right, equal to more growth in GDP. Now, India's real GDP could go up from rupees 159, ये पिछले साल का था, to not just 169 but 170.9 लाख करोड़, ठीक है, उन्होंने बताया, आरबीआई ने सजेस्ट किया। तो यहाँ पे हमने एक बारी सरमाइज कर देते हैं इसको। फर्स्ट अजम्पशन क्या था, व्हाट इफ द टैक्स रिलीफ लीड टू कंजम्पशन। सेकंड रिलीफ क्या था, व्हाट इफ इवन अ थर्ड ऑफ एडिशनल एलोकेशन ऑफ, यहाँ पे ओके, इवन अ थर्ड ऑफ एलोकेशन ऑफ रुपीज 3.5 लाख बजटेड फॉर को मैं हटा सकता था, ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इफिशिएंसी ऐड टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी अपने को समझ में आ गया था, तो हम लोग को 3.2 लाख करोड़ बजटेड फॉर की जरूरत नहीं थी, राइट। व्हाट इफ इवन अ थर्ड ऑफ एडिशनल एलोकेशन if of effective capital expenditure adds to gross fixed capital formation, India's GDP could grow even higher, right, than estimated in normal terms. So, however, the components of GDP show an even more optimistic picture, right? So, we are seeing this, यहाँ पे क्या हुआ, जो पैसेज था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफर हो गया था, right? That is all for this, right? This is the final gist of all these paragraphs, right? Okay, so this is the positive side. Negative side मैंने एक साथ रख दिया था, except the first one in the last paragraph. Just a second, I would have to move to the last paragraph. Okay, yeah, on the supply side तक ये पॉजिटिव था, यहाँ तक पॉजिटिव था, राइट, ये पूरा नेगेटिविटी की तरफ चला गया बेस्ड ऑन द वर्ल्ड फियर्स, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द last one, this all was positive,
right? Even as the global economy is set to slow down, Indian economy would grow. यहाँ पे मैंने इसका पूरा gist लिख दिया था. So if you have any problem, write in the comments, write in the group if you are having my number. So that is all for this passage.